Hello everyone, myself Dr. Jyotiri Gulwani and we are there with our subject Financial Accounting 1. Now today we are going to start with the cash book question with the two columns. So you can read over here, enter the following transaction in two column 1 with the cash book and bank column 1. Before going further, after your question, firstly draw your format. So you know very well how to do the format, draw the format, that is the date, particulars, your receipt number, ledger folio, cash column 1, bank column 1. In the same way to credit side, your date, your particulars, cash column 1 and bank column 1. Why this debit side and credit side? Firstly we have to draw our format. Now let us move further. Transaction of February 1st. Cash balance rupees 11,000 and bank balance rupees 6,000. These two opening balances are given to us. So let us see. This is our opening balances. So when opening balances are given, we have to put it to the debit side. Why? If overdraft is there, overdraft is put it to the liability side and liability is our credit side. So what we have to do, if overdraft is there, we have to put it to the credit side. When balances are there, so balances are put it to the asset side. So what we have to do, we have to put it to the debit side. So opening balances are there February 1st. You can see over here in February 1st, opening balances are 11,000 and 6,000, put it over here. Then number 5, cash purchase rupees 1,000 and cash sales rupees 2,000. Now here in cash book what we have to see, what comes in, what goes out in the form of cash. जो आएगा कैश और जो जाएगा वही रजिस्टर्ड करना है. If we do the cash purchase, that means cash will goes out and whatever goes out we have to do it credit. And if we are doing the cash sales, that means cash is coming in the form. पैसा आएगा तो पैसा आएगा तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिटेड. तो लेट अस चेक अवर फॉर्मेट February 5. सी यू कैन रीड ओवर हियर टू सेल्स अकाउंट. कैश कमिंग इन, तो वी हैव टू गिव एंट्री इनटू कैश ओनली, दैट इज रुपीज 2,000. इन बैंक कॉलम 1 वी हैव टू पुट दी डैश. कैश कम्स इन, सो कैश अकाउंट डेबिटेड. एंड अगेन February 5. Here what we have to write down, by purchase account. We have done the purchase and we have done the payment of 1,000. In bank column 1 we have to put dash. See whatever cash comes in, cash account में debit होगा. Whatever cash goes out, cash column 1 में होगा credit. और हमने क्या किया है, सिर्फ उसका नाम दे देना है. तो see what we have done the sales. तो sales account हमने यहाँ पे लिख दिया है and credit side हमने किसका नाम लिख दिया है, दी purchase. Very easy, like subsidiary book. If cash comes in, debited. If cash goes out, credited. And just write down the name of a particular information what you have done. Then number 7, rupees 5,000 deposited into the bank. Now I have said also it's a contra entry. What is contra entry? That you are depositing cash into the bank. That means बैंक में पैसा जाएगा, बैंक इज अ रिसीवर एंड कैश आपका जाएगा तो कैश गोज आउट. तो दिस टाइप ऑफ एंट्रीज आर नोन एज कॉन्ट्रा एंट्री. कॉन्ट्रा मतलब जिसकी दोनों साइड इफेक्ट आती है. तो ऐसी टाइप की एंट्री में हमें ब्रैकेट में लिखना होगा सी इन विच वे. तो यू कैन सी ओवर हियर कैसे हमने यहाँ पे किया है. दिस इज February 7. कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक मतलब बैंक में पैसा आया. व्हेन एवर इट इज कम्स इन तो इट इज डेबिटेड. तो यहाँ पे नाम लिखेंगे कैश अकाउंट. कैश भरा, किस में भरा, बैंक में. तो बैंक की कॉलम 1 में ही पैसा यहाँ पे आपको दिखाना है. ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री है, दोनों साइड एंट्री है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी. इन द सेम वे दूसरी साइड भी लिखना है 7. किस में हमने पैसा भरा, कैश, बैंक में. तो यहाँ पे नाम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट. कैश गोज आउट तो क्या गया, कैश. गोज आउट तो क्रेडिटेड. एंड यू कैन सी ओवर हियर वी हैव रिटन सी ऑल्सो इनटू द लेजर फोलियो. सी हम किस में लिखेंगे, इनटू द लेजर फोलियो कॉलम 1. नेक्स्ट इज February 8.
received a check from Mihir rupees 1000. Now see, we have received check, but that check is not deposited into the bank until and unless you receive the check. But if it is not deposited into the bank, then entry would not be shown into the bank account. आपको चेक मिला है लेकिन आपने बैंक में जमा नहीं किया, तो आप उसको क्या समझ सकते हो, दैट यू हैव रिसीव्ड वन टाइप ऑफ अमाउंट, तो उसकी एंट्री बैंक में नहीं देना है, बट यू कैन सी ओवर हियर मिहिर अकाउंट, उसको किस में एंट्री देना है, कैश में 1000. क्यों ऐसा करते हैं, इट इज़ अंडरस्टूड दैट वी हैव रिसीव्ड चेक, मतलब हमारे पास 1000 आ गया है लेकिन हमने अभी तक बैंक में जमा नहीं किया है. तो वेन एवर ओनली इफ चेक इज रिसीव्ड, तो एंट्री किस में डालना है, कैश में. लेकिन अगर फिर उसको आप बैंक में डिपॉजिट करोगे, देन इट इज सेड दैट इट इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक. Then transaction of February 9th. पेड सैलरी बाय चेक रुपीज़ 400. हमने चेक से सैलरी पे कर दिया है, तो वो तो बैंक में से ही आपका पैसा जाएगा, एंड वी हैव डन दी पेमेंट ऑफ रुपीज़ 400. तो यू कैन सी हियर February 9 बाय सैलरी हमने बैंक में क्रेडिट कर दिया है 400. अब इसमें क्यों चेक दिया तो हमने कैश में नहीं लिखा, वी हैवंट पेड कैश. वो बैंक से ही पैसा जाएगा, तो वो डायरेक्टली बैंक में जमा करना है. ओनली यू हैव टू रिमेंबर रिलेटेड टू रिसीप्ट ऑफ चेक, चेक मिला है लेकिन बैंक में जमा नहीं किया तो कैश में करोगे. बट वेन एवर एनी पेमेंट इज डन थ्रू चेक, देन डायरेक्ट एंट्री इज शोन इन टू द बैंक अकाउंट ओनली. देन February 15, sold goods of rupees 4000 and received check which was deposited into the bank. Now see here entry is clearly given, we have received the check and that check is deposited into the bank. So हमारा सीधा ये 15 का एंट्री जाएगा into the bank. तो see, you can see over here 15 sales account, we have done the sales of 4000 for which we received amount of 4000 which is deposited into the bank. तो सीधा एंट्री जाएगा into the bank account, बैंक अकाउंट 4000 और हमने क्या किया, सेल्स, तो यहाँ पे नाम लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट, बिकॉज अमाउंट इज कमिंग इन. पैसा सिर्फ आपको देखना है, इफ इट इज कमिंग इन इट इज डेबिटेड, इफ इट इज गोज आउट वी हैव टू मेक इट क्रेडिट. ये सिंपल रूल आपको याद रखना है. देन नंबर 20, February 20, check received from Mihir is deposited into the bank. Now see here you can see, ये चेक हमें मिला था, हमने सिर्फ समझा के पैसा आया है तो कैश में एंट्री दिया. Now what we are doing, we are depositing that check into the bank. तो here again contra entry is going to be there. contra मतलब अब जो हमने एंट्री दिया उसको कैंसिल करेंगे और पैसा कहाँ जमा करेंगे, into the बैंक. तो देखो यहाँ पे आपको एंट्री कैसे देनी है, व्हेन यू आर डिपॉजिटिंग मनी इनटू द बैंक. तो जनरल एंट्री भी समझो, तो बैंक इज अ रिसीवर. तो सी व्हाट वी आर डूइंग, बैंक अकाउंट हम क्या करते हैं, डेबिटेड, एंड व्हाट वी आर डिपॉजिटिंग हम डिपॉजिट करते हैं कैश अकाउंट. तो कैश अकाउंट हम क्या करेंगे, क्रेडिट. बस यही हमें यहाँ पे करना है, कैश अकाउंट कर देना है क्रेडिट और बैंक अकाउंट क्या कर देना है, डेबिट. सिर्फ रिवर्स इफेक्ट दे दो यहाँ पे, जैसे हम लेजर पोस्टिंग करते हैं वैसे लेजर पोस्टिंग समझ लो. तो सी बैंक अकाउंट क्या करना है, डेबिट. तो बैंक अकाउंट 20 को हम कर देंगे डेबिट बाय रुपीज़ 1000, नाम अपोजिट लिख दिया कैश अकाउंट, एंड यहाँ पे 20 में बैंक अकाउंट कर दो क्रेडिट, कैश में हम पैसा डाल देंगे रुपीज़ 1000. कॉन्ट्रा एंट्री ओनली और ब्रैकेट में वहाँ पे लिख देना है सी. Then 24, check received from Mihir and deposited into the bank is dishonored. मतलब वो चेक आपका काम नहीं लगा है. ओके, एक एंट्री भूल गए, उसको बाद में करेंगे. 24 पहले दे देते हैं, चेक रिसीव्ड फ्रॉम मिहिर एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक इज डिसऑनर्ड. मतलब वो चेक वापस हुआ है. तो अब वो चेक हम किसको देंगे, वो चेक हम देंगे मिहिर को. ठीक है, तो हियर
1000 का चेक था आपका विच वॉज डिसऑनर्ड, तो डिसऑनर्ड हो गया तो उसकी एंट्री क्या होती है, वो इज अ रिसीवर, पता है वहाँ पे डिसऑनर्ड की एंट्री ऐसे होती है, दैट इज मिहिर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक को पैसा वापस दे देती है। तो सी व्हाट वी हैव टू डू, हमें सिर्फ बैंक अकाउंट कर देना है क्रेडिट एंड अपोजिट नाम दे देना है मिहिर अकाउंट। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, तो बैंक के क्रेडिट साइड यू कैन सी ओवर हियर बैंक अकाउंट हमने कर दिया है क्रेडिट, अपोजिट नाम यहाँ पे दे दिया है मिहिर अकाउंट। डिसऑनर्ड मतलब चेक उसका चला नहीं, तो बैंक ने रिटर्न किया, बैंक किसको रिटर्न करेगी, जो ओनर है उसको, तो दैट्स वाई मिहिर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक को क्रेडिट कर दिया, अपोजिट नाम हमने मेंशन कर दिया है। एंट्री 22nd, withdraw 1 rupees 4000 for office expenses and rupees 5000 for personal use from बैंक। दो एंट्री साथ में है, हमने बैंक में से पैसे निकाले हैं। नाउ व्हेनेवर वी डू एनी विड्रॉल फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए अगर हम कुछ भी विड्रॉल करते हैं तो कैश कम्स इन द फर्म। तो देखो इसकी एंट्री क्या होगी पता है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। whenever you do any entry withdrawal for office, तो उसका क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इसकी एंट्री आपको आएगी, कैश में डेबिट कर देंगे और बैंक में हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, सिर्फ नाम अपोजिट लिख देंगे, ठीक है। Then another entry in this is what, that rupees 5000 for personal use from bank। 5000 पर्सनल यूज़ के लिए निकाले तो वो हमारा हो गया ड्राइंग्स। तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे होती है, दिस इज ड्राइंग्स अकाउंट होता है डेबिट टू बैंक। अगेन सी इसकी सिर्फ आपको लेजर पोस्टिंग करनी है, इफ़ यू आर अवेयर अबाउट द जर्नल एंट्रीज क्लियर, तो आपको सिर्फ पोस्टिंग करनी है। व्हाट यू हैव टू डू, बैंक अकाउंट करना है आपको क्रेडिट, ड्राइंग्स अकाउंट आपको करना है डेबिट। लेकिन ड्राइंग्स अकाउंट हमारे पास नहीं है, सिर्फ बैंक अकाउंट है, तो बैंक में कर देंगे क्रेडिट और नाम अपोजिट लिख देंगे ड्राइंग्स। तो 22nd में आप यहाँ पे एंट्री देख सकते हो, दैट इज सी बैंक अकाउंट ओवर हियर, जो कॉन्ट्रा एंट्री है पहले वो देते हैं, ठीक है। ऑफिस यूज़ के लिए कैश कम्स इन, तो 4000 जनरल एंट्री आनी चाहिए और फिर उसकी लेजर पोस्टिंग कर दो इसी एक में 4000। और यहाँ पे आप देख सकते हो 22nd में कैश अकाउंट हमने यहाँ पे अपोजिट नाम लिख दिया है, पैसा किस में लिख दिया, 4000 इंटू बैंक अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री यहाँ पे याद रखना। और 22nd में बैंक में से 5000 आपने पर्सनल विड्रॉल के लिए पैसा लिया है, तो 5000 यहाँ पे कर देना है क्रेडिट एंड ड्राइंग्स अकाउंट अपोजिट नाम लिख दिया है। यू कैन रिमेंबर इट्स अ वन काइंड ऑफ लेजर पोस्टिंग ओनली। सिर्फ ध्यान क्या रखना है, कैश एंड बैंक, कैश डेबिट तो डेबिट, कैश क्रेडिट तो क्रेडिट, बैंक डेबिट तो डेबिट, क्रेडिट तो क्रेडिट, एंड जस्ट राइट डाउन द अपोजिट नेम। इफ यू आर अवेयर अबाउट द जर्नल एंट्रीज क्लियरली, देन इट cash book is very easy to do. Then 26, purchase goods worth rupees 2000 from Vinith on credit. Now this transaction is credit transaction, तो this credit transactions are never recorded in the books। तो इसकी आप नोट लिख सकते हो at the end of your book that this is a credit transaction। And last one is a dividend of rupees 1500 collected by bank and क्रेडिट इन योर अकाउंट। बैंक ने कलेक्शन किया और आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, एंड ₹100 डेबिट बाय बैंक फॉर बैंक चार्जेस। और बैंक ने क्या किया, 100 बैंक चार्जेस डेबिट किए हैं इन योर अकाउंट, ठीक है। तो बैंक कलेक्टेड एंड डिपॉजिटेड इनटू योर बैंक अकाउंट। तो देखो बैंक वहाँ पे क्या करता है, आपके अकाउंट में डिपॉजिट करता है। तो जनरल एंट्री क्या होती है, जनरल एंट्री ही पहले देख लो। डिविडेंड इज रिसीव्ड एंड इट इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, तो वो इज रिसीवर बैंक। तो हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट, है ना। अब इसको लेजर पोस्टिंग करना है, बैंक अकाउंट डेबिट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बैंक अकाउंट हमने क्या कर दिया है, डेबिट, अपोजिट नाम दे दिया, तो इसकी जनरल एंट्री हो गई। एंड ₹100 बैंक चार्जेस आर डिपॉजिटेड बाय बैंक। तो बैंक ने आपके बिहाफ में बैंक चार्जेस वहाँ पे किए हैं डेबिट।
या तो लिए हैं या तो पे किए हैं, तो देखो इसको क्या समझ सकते हो, दैट इज चार्जेस हैं, तो चार्जेस ऑलवेज स्टूडेंट्स क्या होते हैं, डेबिट। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू इट इज पेड बाय बैंक, तो बैंक अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट। तो आप यहाँ पे देखो समझ सकते हो, बैंक चार्जेस का अकाउंट डेबिट करना है, ये हमारे पास नहीं है तो लेजर पोस्टिंग नहीं करेंगे, बैंक अकाउंट है क्रेडिट, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड लिख दो, नाम लिख दो अपोजिट, है ना। तो ये आप देख सकते हो, बैंक अकाउंट क्रेडिट, नाम अपोजिट बाय बैंक चार्जेस। तो इन दिस वे जस्ट वी हैव टू डू लेजर पोस्टिंग, जर्नल एंट्री आना चाहिए, कैश एंड बैंक के ट्रांजेक्शन यहाँ पे आपको रिकॉर्ड करने हैं, जस्ट गिव दी अपोजिट नेम। Then at the end what you have to do, just make the total of cash and bank, of cash and bank। पहले कैश का टोटल करेंगे, जो ज़्यादा आएगा वो हम दोनों साइड प्लेस करेंगे, सॉरी फॉर इंटरप्शन। वो हम दोनों साइड प्लेस करेंगे और यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे बैलेंस ज़्यादा है 18,000, तो यहाँ पे प्लेस कर दिया है 18,000। बैंक का भी टोटल 17,000 ज़्यादा है, 17,500 प्लेस कर दिया दोनों साइड। फिर जो बैलेंस बचेगी एट द एंड ऑफ द डेट, फेब्रुआरी है तो 28 डेट लास्ट यहाँ पे लगाई है, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड डेट, जो बैलेंस बचेगी वो कैरी फॉरवर्ड करना है। एंड फिर नीचे भी मार्च की ओपनिंग बैलेंस ऐसे बता देनी है, टू बैलेंस brought down 11,000 and 7,000। तो इन दिस वे कैश बुक इज कैलकुलेटेड। सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे याद रहे, यू मस्ट नो जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज आएगा तो उसके बेसिस पे सिर्फ आपको लेजर पोस्टिंग करना है, लेकिन अलग अलग लेजर्स में नहीं, ओनली इन दिस वन लेजर। कैश डेबिट तो डेबिट, क्रेडिट तो क्रेडिट, बैंक डेबिट तो डेबिट, क्रेडिट तो क्रेडिट, अपोजिट नेम। दिस इज अगेन अ सिंपल rule to go with our cash book. Now in the next video we will go with the next question. So till then stay tuned. Goodbye.